Spices have been a part of Indian culture and cuisine for thousands of years. They are used in almost every Indian dish and have played an important role in the country's economy. In ancient times, India was a major center for spice trade, and today, India is the world's largest producer and exporter of spices. So, hello everyone, welcome to the FT Plus Academy of Civil Services, a premier organization for preparation of civil services exam. In today's News in Focus video session, we'll discuss about spice market of India, a brief snapshot at history and its current scenario. And it is relevant for GS paper 3rd. We will also talk about the current Indian spice market scenario. So it would be useful. So the topics are current events of national and international importance, food processing and related industries in India. So let's first understand the history or the context. So the history of spices in India, it reflects a fascinating journey of cultural exchanges, economic prosperity, and integration of those Indian spicy flavors and distinct flavor of India's cuisine into the global culinary landscape. And they are irreplaceable in एनी इंडियन मील इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. आप ईस्ट चले जाओ, वेस्ट चले जाओ, साउथ में हो, नॉर्थ ईस्ट में है, आप नॉर्थ में है, स्पाइसेस आर irreplaceable, right? So this masala has become a synonym for more fun. So it symbolizes the enjoyment in India itself. जैसे मसाला बॉन्ड्स, इंडिया बेस्ड जो बॉन्ड्स थे, इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा. मसाला मूवीज़ यानी कि जो भी कमर्शियल एंटरटेनमेंट से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं जो काफ़ी मास को कैटर करती हैं, दे आर कॉल्ड मसाला मूवीज़. सो राइट, मसाला इज सिम्बोलाइजिंग इंडिया, मसाला इज सिम्बोलाइजिंग एन्जॉयमेंट, राइट. सो लेट्स लर्न द हिस्ट्री क्विकली. इट हैज़ एंशियंट ओरिजिन्स, यानी हिस्ट्री की अगर हम बात करें स्पाइसेस की, डेट बैक्स टू द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, राइट. जो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इतनी ओल्ड, यानी कि 2000 BC तक के हमें ट्रेसेस मिलते हैं स्पाइसेस के. सो स्पाइसेस इन इंडिया कैन बी ट्रेस बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशंस. दे वर यूज्ड फॉर culinary एंड द मेडिसिनल पर्पस इवन इन द अर्ली सिविलाइजेशंस. ठीक है, ऋग्वेदा की भी बात करें, दैट इज जिसका ड्यूरेशन माना जाता है 6000 BC एंड मोर. तो ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेद, अथर्ववेद में भी फर्स्ट रिटर्न रिकॉर्ड मिलते हैं स्पाइसेस के. फॉर इंस्टेंस काफ़ी सारे स्पाइसेस मेंशन किए जाते हैं ऋग्वेदा में, यजुर्वेदा में, जैसे कि ब्लैक पेपर, काली मिर्च, राइट. ट्रेड रूट की अगर हम बात करें, ठीक है, ट्रेड रूट आपको देखो बैकग्राउंड में जो दिख रहा है स्क्रीन में, जो सिल्क रोड है, ठीक है. तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी वाज ऑन द एंशियंट ट्रेड रूट इंक्लूडिंग द सिल्क रोड. ये सिल्क रोड है, बाकी नीचे आप देखो केरला से इधर से होके जा रहे हैं. तो ये एंशियंट रूट्स पे जो इसकी लोकेशन है, इसको फेवर किया ट्रेड स्पाइस रूट को. सो मैनी सी वोयाजेस ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस स्पाइसेस. ठीक है, 1498 में पुर्तगीज आए थे, स्पेशली आपको पता हो वास्को द गामा, ही फाउंड Kozhikode in India's southwest coast. The Vasco da Gama returned with a massive stock for nutmeg, clove, cinnamon, ginger, because these spices were highly sought after by the Europeans, and they were contributing to the economic prosperity. Right? You can see the Silk Road in or the trade route in the background. Now come to the Ayurvedic influence. So these spices, जो traditional Indian medicines हैं और सिस्टम्स हैं, जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, स्पाइसेस हैज बीन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ these systems for centuries because they have very healing properties, medicinal properties to treat various ailments and the diseases. For instance, जो 4th century BC का जो टेक्स्ट है, एंशियंट टेक्स्ट है, इट टॉक्स अबाउट द सुश्रुता. सुश्रुता जो रेनाउंड इंडियन सर्जन भी माने जाते हैं, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर भी माने जाते हैं, ही यूज्ड स्पाइसेस फॉर various healing and antiseptic purposes, right. If we talk about the Arab and Persian influences, spice became these traders, urban and Persian traders, it played a crucial role. जो स्पाइसेस को यहाँ से लेके एंड थ्रू अपनी कंट्री से होके यूरोप तक पहुँचाने में इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा. और यूरोप में उस टाइम पे ये लग्जरी कमोडिटी थी.
सी विंटर्स के बाद जो समर्स आती थी, सो दे नीड स्पाइसेस टू प्रिजर्व देयर फूड, टू एनहेंस द टेस्ट ऑफ द फूड, राइट. सो स्पाइसेस उनके लिए बहुत ज़रूरी थे. तो स्पाइसेस वर द ट्रेडिशनल एंड द लग्जरी कमोडिटी इन द यूरोप एट दैट टाइम. तो यूरोपियन स्पाइस ट्रेड की जैसे हमने बात की थी, वास्को डिगामा की भी बात की थी. सो इन द 15th सेंचुरी स्पेशली द पुर्तगीज, डच, उसके बाद में फिर ब्रिटिश भी आए, फ्रेंच भी आए. उन्होंने कहा, सोचा कि लेट्स access those Indian spice producing regions directly. So it became the age of exploration. तो डायरेक्ट एक्सेस के चक्कर में वो इंडिया आए. इंडिया में दे एम टू कंट्रोल द स्पाइसेस ट्रेड. तो कॉलोनियल कंट्रोल में रहा 1813 तक ये. जैसे कि आपने पॉलिटी में भी, हिस्ट्री में भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि चार्टर एक्ट 1813 तक ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली था, इंडियन मार्केट. और उसके बाद अलाउ कर दिया गया था बाकी और को एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना. लेकिन तब तक कंट्रोल रहा था यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स का. दे कम्पीट फॉर द डोमिनेंस इन स्पाइस प्रोड्यूसिंग रीजन्स स्पेशली इन केरला. तो फियर्स बैटल हुई थी, फियर्स कंपटीशन था पुर्तगीज, डच और ब्रिटिश के बीच में. सो स्पाइस प्लांटेशन पे भी इन्होंने ध्यान दिया, केरला में, कर्नाटका में स्पेशली. एंड दे आर फोकस्ड ऑन द ब्लैक पेपर, कार्डेमम, सिनामोन फॉर एक्सपोर्ट. ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, कार्डेमम इलायची, सिनामोन इस दालचीनी, फॉर एक्सपोर्ट. पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी इंडिया ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं और इट इज स्टिल ए मेजर प्लेयर इन द ग्लोबल स्पाइस मार्केट, राइट. तो गवर्नमेंट ने क्या सपोर्ट किया स्पाइस कल्टीवेशन में, और जिससे इंडिया अभी भी एक अच्छा एक्सपोर्टर है काफ़ी सारी स्पाइसेस का, ठीक है. क्योंकि स्पाइस का जो प्रोडक्शन है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारी स्टेट्स में होता है. कौन से स्टेट्स में होता है वो भी हम देखेंगे. एंड नाउ द स्पाइस इज वेल एक्सेप्टेड ग्लोबली. दे आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल culinary practices, right. So India is contributing significantly to enhancing the flavor of the world. Let's understand the current scenario of spice market quickly. So when we talk about the production, India is still the world's largest spice producer, largest consumer and the largest exporter, राइट. केरला इज जनरली कंसिडर्ड द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जो कि साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में है. यहाँ पे स्पाइस गार्डन कंसिडर किया जाता है इंडिया का. हाउएवर देयर आर वेरियस अदर स्टेट्स विच आर ऑल्सो कल्टिवेटिंग स्पाइसेस सिग्निफिकेंटली. अगर हम वेस्ट में देखें तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र. सेंटर में देखें तो एमपी. अगर नॉर्थ में देखते हैं तो यूपी है. When we talk about east and northeast, it is West Bengal, Odisha and Assam. और साउथ इंडिया तो है ही अपना सारे स्टेट्स, स्पेशली केरला एंड कर्नाटका. Let's talk about the figures. If we look at the numbers from IBEF report, so production in 2021 and 22 was 10.87 million tons according to this report. And during 2022-23, the export of spices from India was 3.73 billion US dollar, जो कि एक साल पहले था 3.46 बिलियन डॉलर. लेकिन अगर हम फिगर्स देखते हैं, स्पाइसेस बोर्ड के नंबर्स देखते हैं, वो ज़्यादा इनकरेजिंग है. यहाँ पे हम जो बात करें वैल्यू की, तो इट इज़ अराउंड 3.9 बिलियन US डॉलर इन 2022-23. स्पाइस बोर्ड्स के नंबर ज़्यादा इनकरेजिंग है. बट ओवरऑल ये है कि वी आर सिग्निफिकेंटली हैविंग ग्रिप ओवर द स्पाइस प्रोडक्शन एंड ट्रेड ओवर ग्लोबली, राइट. सो स्टेट्स की हमने बात कर ली थी. लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट स्पाइसेस. तो स्पाइसेस बोर्ड ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं विच एम्स टू सपोर्ट द एक्सपोर्टर. कैसे कि इट हेल्प्स द एक्सपोर्टर टू अडॉप्ट द हाई एंड टेक्नोलॉजी, processing technology. As for that, they have to upgrade the existing level of technology and other equipments. ये किस में हेल्प करेगी? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, फॉर द क्वालिटी मेजर्स, फॉर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स विच इज़ in line with the European और US standards. So it helps in promotion of the export, right? So अगर हम बात करते हैं यहाँ से, ये एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है इधर यूएस में, वेस्ट में, यूरोप में. तो दिस स्पाइस बोर्ड इज एक्टिंग एज ए लिंक. इसका काम क्या है?
प्रमोशन के अलावा मॉनिटरिंग ऑफ क्वालिटी, जैसे क्वालिटी मॉनिटर नहीं होगी तो रिपीट परचेज में इश्यूज आएंगे, तो मॉनिटरिंग ऑफ क्वालिटी. इट ऑल्सो प्रोवाइड द मटेरियल सपोर्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस to the cultivators, and along with that research and infrastructure facilities is also provided by the Spices Board of India. और स्पाइसेस पार्क भी एस्टेब्लिश किए हैं, 8 क्रॉप स्पेसिफिक स्पाइसेस पार्क हैं. फॉर एग्जांपल इसने 8 पार्क कहाँ एस्टेब्लिश किए हैं हम देख लेते हैं. एमपी में 2 हैं, गार्लिक, चिली एंड कोरिएंडर. गार्लिक चिली वाला है वो छिंदवाड़ा में है, और कोरिएंडर वाला है दैट इज इन गुना. आंध्र प्रदेश में 1 है, गुंटूर में, दैट इज रिलेटेड टू चिलीज. अगेन राजस्थान में 2 हैं, 1 इज इन जोधपुर, सेकेंड इज इन रामगंज मंडी, दैट इज नियर कोटा. तो जोधपुर इज रिलेटेड टू द क्यूमिन, जीरा, एंड रामगंज मंडी इज रिलेटेड टू द कोरिएंडर, दैट इज धनिया. केरला में 1 है, पुत्तडी स्पाइस पार्क, एंड दैट इज रिलेटेड टू द कार्डेमम एंड द पेपर. यूपी में भी 1 है, रायबरेली, and our spice is covered in that spice park is mint. And there is one more southern state of India, that is Tamil Nadu, Sivaganga spice park. कौन सा है यहाँ पे? Sivaganga. And the spices covered here are chilies and turmeric, right? So before moving to the prelims years questions, let's first there is one important announcement. FT Plus Academy has come up with the Nishchay test series for prelims 2024, and this comprehensive test series designed by the subject matter expert offers you the various benefits. जैसे 4900 quality questions हैं, 10 recorded classes हैं, so that you can analyze your weak area, strong areas, and you can work on that. If you're not satisfied with the quality, your money will be returned. राइट. सो रियलिस्टिक एग्जाम सिमुलेशंस होंगे, टाइम बाउंड प्रैक्टिस होगी टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, एंड दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू कम्पीट विद थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स, राइट. सो फॉर एनरोलमेंट, फॉर रजिस्ट्रेशन, you can scan the QR code given on the screen, or you can visit the link which is provided in the description of this video. Now let's move to the previous year's question of prelim 2018. And the question was the staple commodity of export by the English East India Company from Bengal in the middle of 18th century. Middle of 18th century around 70-50s. तो यहाँ पर कौन कौन से थे? ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग था, राइट. बहुत से लोग गलत करके आए, बट इफ यू रीड योर टेक्स्ट केयरफुली, योर basic material carefully, you will be able to answer this question. So the correct answer for this question is D, the cotton, silk, saltpeter and opium. They were not involved in the gold trade, right? They were not involved in some kind of zinc trade, right? So mainly they were into the cotton, silk, opium and saltpeter. So the answer is D, right? So that's it for all today. Thank you for joining today's news and focus session of FT Plus Academy, and I hope the discussion proves valuable for upcoming UPSC examination. Stay tuned for more educational content and topics useful for exams. Till then, keep learning, keep visiting FT Plus YouTube channel, and thank you for watching. Signing off.